What are verbs? वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कोई चीज हो रही है, किसी के पास कोई चीज है, पोजेशन, जो कुछ कोई सोच रहा है, नेक्स्ट कोई फीलिंग. ओके, these four come under verb. See, I wrote the first example. I am doing my homework. यहाँ पे हमको क्या मिला? Doing. कोई कुछ काम कर रहा है, कोई होमवर्क कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट. I have a black car. Tell me. Have. And what is have? Yes, I'm having something, or it is my possession. Okay. Okay. Third. Thinking. Yes, thinking. I think you are able to understand the concept. Peter, let me write. The concept. मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ आप able to understand है इस concept को, आप समझ पा रहे हैं इस concept को. ओके? So यहाँ पे हमें क्या मिला? Thinking. ओके? Code. Tim, what? किसका मीनिंग? बताओ किसका मीनिंग? अच्छा मुझे लगा मीनिंग पूछो. Tim hates. Tim is happy. Morris. Tim hates Morris. What is the verb here? Hate. And hate is a feeling. And it is also a verb. Okay? Written? You're writing the definition right now. Why? Why you so slow? And because they are. अच्छा, I was standing here. That's why. Okay, be right. Right. Take it right. I'm done. Huh? I'm done. अच्छा, something else can also be. Yeah, यहाँ पे कुछ और भी आ सकता है. Wait. The milk is hot. यहाँ पे हमने verb लगाया ना? Verb लगाया, कौन सा verb है यहाँ पे? बेटा hot is adjective. कैसा है milk? Hot. और मैंने क्या लगाया है यहाँ पे? Helping verb लगाया. That is. और ये क्या बताया? किसी चीज की condition. Okay? Situation or condition. How is the milk? The milk is hot. So it is the condition. हम यहाँ पे एक और चीज ऐड कर लेंगे, condition. Milk is noun. Who is asking this? Yeah, milk is the subject. किसने पूछा? Who asked? अच्छा, मतलब किस तरीके से पूछना चाह रही हो मुझे बताओ. कि मिल्क क्या है? मिल्क इज द सब्जेक्ट हियर, इट इज द नाउन. ओके, सी सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है. ओके, डन. Yes, ma'am. Shall I read? Yes, ma'am. Yes, ma'am. My writing is very much. I'm writing
इरेज कर दूं? बेटा सी, मैं एक बच्चे के लिए वेट नहीं कर सकती हूँ ना, आप सबको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है? यस, तभी हम एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, राइट? यस, वेरी गुड। हाँ, मेरे साथ साथ लिखो, जो मैं लिख रही हूँ मेरे साथ साथ लिखो, then I'll make you understand. बेटा याद रखो अब एग्जाम्पल। Okay, now we'll talk about the types of verbs. Okay. See, सबसे first main verb, okay, then auxiliary verb which is known as helping verb. It is also known as helping verb. Main verb and helping verb, ये आपके main verbs है, ठीक है? अब what comes under main verb? Transitive, Intransitive. yes, and intransitive. Transitive का कोई एग्जाम्पल बता सकते हो? बता सकते हो? चिराग, ओके, नहीं, आप बताओ, अभ्युदय, हाँ। इसका नाम क्या है? क्रिश सर। आप बताओ फिर आप, ट्रांजिटिव। Then he यस, यस, करेक्ट, वेरी गुड, सिट। then See, transitive verb में we have subject, we have subject plus object plus helping verb. subject, verb plus object. It becomes transitive. Example, can you give me an example? He is playing football. Yes, he is playing football. He is playing cricket. Yes, see, he is the subject here. Is the helping verb. Playing is the main verb. Football is the object. Yes, tell me. That AU after what you have written. X. Beta, you should ask me, don't ask him. I'll tell you. See, अब यहाँ पे हम yes, who's asking यहाँ? कोई बात नहीं, आपको पता है ना F. ठीक है. A subject. Doubt what? ये डाउट क्या है? मैं पढ़ा रही हूँ. I'm done. ओके, चलो हेल्पिंग वर्ब. सी, चलो इसको हम ऐसे लिखते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब के अंडर आता है हेल्पिंग वर्ब एंड मोडाल. Break it and make you understand. Modals and helping verb. ठीक है? Helping verb के अंदर see, to be, to have, to do. Then I'm taking in first
ओके इंट्रांजिटिव तो इंट्रांजिटिव करते हैं. सी इंट्रांजिटिव बहुत इजी. इसमें आपके पास सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है. इसमें आपके पास ओनली सब्जेक्ट प्लस वर्ब. देयर इज नो ऑब्जेक्ट ओवर हियर. ठीक है. लाइक Rita is singing. What is the verb in good girl? Who told this example? Rita is singing. See, we have subject here. We have a verb here. And we have Object. is it object? Main verb. आपको ऊपर समझाया है इंट्रांजिटिव में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है. द सेंटेंस इज कंप्लीट विदाउट द ऑब्जेक्ट आल्सो. ओके. सो रीता इज सिंगिंग. देयर इज नो ऑब्जेक्ट ओवर हियर. Subject, helping verb and the main verb, and that's it. The sentence is complete and is known as the intransitive sentence. Okay. आप इतना लिखो, then I'll make you understand वो दूसरा वाला part. हमने मॉडल्स पढ़े. आपने मॉडल्स पढ़े? Okay. Very good. Done? Okay. Good. Let them also write, na? Yes. आपने वो मेन वर्ब में जनरल रेटिंग से पहले क्या लिखा है? काम अच्छा ये टी ये पूछ रहे हो. ये टी है बेटा. टी. I write टी like this. I'm sorry. What is the meaning of MP? Main verb. You read this? Shall I read this? Yes, ma'am. No, ma'am. Right, fast. It's intransitive. Right, fast. कोई बात नहीं. आप लिखो जल्दी लिखो. 2 minutes only. This new girl, you were not there in the class yesterday, right? Yeah. Yesterday आप थे, but you were not there in my class. I'm coaching. You there? Where were you sitting? Where were you sitting? I didn't know. Here, ma'am. Here. She's sitting here. Okay. Helping verb. Yeah, Rita is singing. Rita is studying. कुछ भी लिख सकते हैं बेटा. अभी just write this fast. I have to move on to the helping verb also. Done? Okay. Yes, ma'am. याद रखो sentence I'm releasing, please. Don't waste time ना. Write fast. No, अभी बिल्कुल कोई नहीं जाएगा वॉशरूम में. पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही आप वॉशरूम जाओगे. Okay. Now we discuss about helping verbs. Okay. See. बेटा आप कर लेना. I can't wait. आप करते रहो. मैं लिख रही हूँ. आप करते रहो. You can't tell me to wait. Okay. To be. इसमें क्या क्या आता है? See. Be के forms. Be के forms जानता है कोई? बी के फॉर्म्स जानता है कोई? नो. सी बी के फॉर्म्स इज एम आर वॉज वर. नो. हैज हैव हैड कम्स अंडर टू हैव. ठीक है. To do, does, did. Okay? आज हम इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से. ठीक है. मोरल्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. बिकॉज आपको ये पहले अच्छे से समझना जरूरी है. Don't shake your leg.
डोंट निकल है मेरा रूम है तो मेरे साथ पैरों से मत खेलो डन रिटन जो नो बोल रहे हैं उनके लिए मैं भी नो बोल साइलेंट एक्सक्यूज मी ये क्या कर रहे हो क्या चल रहा है ये वो वीडियो गेम क्या हो रहा है ओके First, to be is singular sentence and in present tense. Then are plural sentence and in present. Am comes with I और ये continuous sentence में आता है was singular and past tense were plural past tense ओके अंडरस्टैंड ये क्या लिखा है मैंने कुछ समझाएगा इस का सेंटेंस हमेशा सिंगुलर के लिए बनेगा और प्रेजेंट टेंस में बनेगा देन आर will be for plural and in present tense then am will come with I only and it will be a continuous sentence like I am playing I am doing okay ing form आ जाएगा उसमें verb का was is for singular and past tense were is for plural and past tense okay what no कोई वाटर में कोई वॉशरूम नहीं जाएगा कोई पानी नहीं पिएगा जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ ओके मैम कंट्रोल यस मैम जो वर्कआउट कर रहे हैं मैम उनके जो पास्ट है मैम वो कंटिन्यूअस सिंपल किसी में भी आ जाएंगे इसमें मैंने नहीं बोला है इसमें मतलब अभी मैं आपको टेंसेस नहीं पढ़ा रही हूँ जहाँ पे जितना जरूरी है ना मैंने उतना आपको बताया है आगे जब हम टेंसेस करेंगे देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अभी नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी ठीक है चलो टू हैव आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आस्किंग बट अगर मैं आपको सारी चीजें अभी बता दूंगी तो फिर आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा ठीक है क्योंकि ये हम टेंसेस चैप्टर में करेंगे वो इसलिए इसमें बताया है क्योंकि जरूरी है आई के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म का वर्ब जाता है इसलिए ओके टू हैव एम के साथ सॉरी मैंने आई बोल दिया एम के साथ हैज have and had has is singular present tense have is plural present tense had is past पास्ट टेंस और प्लूरल का सेंटेंस बनेगा या सिंगुलर का कैसे सेंटेंस बनाओ हैड का she had been eating food had के साथ been क्यों आया तो मैं टेंसेस पढ़ाने लग जाऊंगी फिर वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा ये तो पता ही होगा ना परफेक्ट के साथ आता है हैज एंड हैड अब ये याद रखो ठीक है पहले हम वर्ब पे ध्यान देंगे आप
लोगों को समझ में आ रहा है मैं समझा रही हूँ, समझा पा रही हूँ प्रॉपर्ली? नहीं समझा पाऊंगी आप, यू कैन आस्क मी 10 टाइम्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, ओके? नहीं, पर एक भी पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया आप मुझसे पूछोगे, ये नहीं आप दूसरे बच्चे से पूछ रहे हो, ओके? लेफ्ट साइड पे टू डू, या वेट लेट मी राइट, फिर मैं साइड हो जाऊंगी, आप लिखिएगा, ठीक है? टू डू, डू, डज एंड डिड। डू का क्या बन जाता है? डूइंग बन जाता है, और भी कुछ बनता है? डूइंग होती है ना, तो ये हम सिंगुलर में, सॉरी सिंगुलर में प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं। वैसे इसमें ना एक्चुअल में ऐसे समझाने वाला कुछ है नहीं, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसको आप ऐसे ही रखो, ठीक है? धीरे धीरे जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको आई मेक यू अंडरस्टैंड। बेटा आप अपने काम करो, घर में भी ध्यान रखो, ठीक है? तो मैम ने बंद किया किसी रीजन से किया है, यू आर एबल टू सी? यस मैम। That मैम who is saying no ma'am? अभी मत लिखना वो, ठीक है? उसमें जरूरी नहीं कंफ्यूज हो गए, अंडरस्टैंड पार्ट। We'll do the exercise now, na? Achha, see, there are some rules in your book. Page number 60. Regular and irregular verbs. Regular and irregular verbs. I want कि next class के लिए आप लोग ना ये जो रूल्स हैं ये पढ़ के रखो, और पढ़ के क्या आप लर्न करोगे, ठीक है? यू लर्न देम, ठीक है? कहाँ तक? या टिल पेज नंबर 64। सी दीज आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है? जो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं, लाइक ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो आपको ये पता होना चाहिए, ब्रेक इज द फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या है, ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, ठीक है? ये आपको समझ में आना चाहिए और ये आपको लर्न करना है, ये लर्न करना जरूरी है। ये कोई आपको समझाएगा नहीं, आप जब तक लर्न नहीं करोगे, इवैल्यूएट नहीं करोगे, तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो आई वांट कि आप ये जो चीजें, ये जो है ना, जो मैंने आपको पेज नंबर बोले हैं, ये आप खुद से पढ़ोगे, देन आई मेक यू अंडरस्टैंड ये चीजें क्या है, ठीक है? क्योंकि मैं पढ़ा दूंगी, आप खुद से नहीं पढ़ोगे, वो आपकी ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको ये पेज बोला है, पेज नंबर 62, 64। ये पहले आप खुद से इवैल्यूएट करोगे, देन आई मेक यू अंडरस्टैंड, ओके? समझ में आ गया? ठीक है। लेफ्ट साइड पे और नहीं, अभी रिव्यू करना है, ये आपका होमवर्क है। मेरी क्लास नेक्स्ट जो क्लास होगी साथ में आना है। लर्न कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो मंडे को बेटा कभी भी होगी क्लास, तो आपको ये लर्न करना है, ठीक है? मैम आपकी क्लास कब से कब तक है? मैम बता देगी नहीं अभी लाइक फॉर 2 आवर्स। आप क्यों पूछ रहे हो और क्यों इंटरेस्टेड हो? आप पढ़ाई में इंटरेस्ट लो ना, क्या हुआ है? नहीं पढ़ना फिर? अच्छा ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है। कौन बच्चा है जो ज्यादा पढ़ना चाहता है? और ये सब कोई तुम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हो तो क्लास में क्यों बैठे हो? क्लास में क्यों बैठे हो? सब चाहते हैं तो पेरेंट्स आगे तो क्या हो गया? ओके ओके, हाथ नीचे, हाथ नीचे। या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सच बोला आपने, गुड।
जबरदस्ती तो बेटा कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता है, राइट? तो अगर आपको कुछ भी मेरा समझाया हुआ समझ नहीं आए ना, आप मुझसे पूछ सकते हो, क्लास के बाद में पूछ सकते हो, कहीं पूछ सकते हो, ठीक है? वो आगे बताऊंगी, मैंने इसलिए अभी बताया, ठीक है? चलो ओके, अब ना इसके बाद एक और आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, नॉन फाइनाइट वर्ब्स का, ठीक है? फिर हम एक्सरसाइज करते हैं, ओके? नॉन फाइनाइट वर्ब्स छोटा कॉन्सेप्ट है, मोडाल्स में आज नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। पहले ये और नॉन फाइनाइट वर्ब्स हम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, देन हम मोडाल्स पे आएंगे, ठीक है? ये चैप्टर एक दिन में नहीं कंप्लीट होएगा। थैंक यू। यस, बड़ा चैप्टर है, मोडाल्स जल्दी से कवर नहीं हो पाते। मोडाल्स भी बेटा हेल्पिंग वर्ब भी होता है, लाइक कैन, कुड, शैल, शुड, दीस आर आल्सो हेल्पिंग वर्ब्स ना, ऑक्सिलरी वर्ब्स। Yes, yes. I didn't ask you. Point. No. See, आप ना पहले दिमाग में रख लो, मेरी क्लास से पहले वॉशरूम, पानी सब पहले ही कर लो, बीच में मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि आप जाओगे, आप डिस्टर्ब करोगे दूसरे बच्चे को, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रही होंगी, मुझे डिस्टर्ब होगा, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके तब जाओगे, ठीक है? Who is making noises? Okay, non-finite verb. ये होते क्या है, कोई बताएगा? क्या होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स? आर फाइनाइट वर्ड पता है। नॉन फाइनाइट वर्ड वो होता है जो अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं। यस, जो अपनी फॉर्म चेंज, जैसे और ये अपनी फॉर्म चेंज भी करते हैं। एग्जांपल, चलो फाइनाइट से ही पढ़ाते हैं। He writes a book. He write a book. He write a letter. शुरू से ही करवा रही हूँ, फाइनाइट वर्ब से ही करवा रही हूँ। ओके, सी फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं। यू वर राइट। व्हाट इज योर नेम? गौरव, ठीक है? Those verbs which can change their form with change in person, person यहाँ पे क्या हुआ? सब्जेक्ट, ओके? नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है? अगेन नंबर ऑफ सब्जेक्ट और टेंस। और टेंस किसका चेंज होता है? वर्ब। मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, आपका ध्यान यहाँ नहीं है, आप आपस में बात कर रहे हो, आप आरएमसी की तैयारी कर रहे हो। नहीं करनी है प्रिपरेशन तो बता दो बेटा, मुझे नहीं वहां बैठना है एग्जाम देने के लिए ना, आप लोग को बैठना है ना कि मुझे बैठना है वहां, मैं दूंगी आपके एग्जाम। मैं अपने लिए पढ़ रही हूँ, बी अटेंटिव। टेंस किसका चेंज होता है? वर्ब का। He writes a letter. मुझे इसमें पर्सन बताओ,
नंबर बताओ, टेंस बताओ। मैम पर्सन ही राइट्स ही पर्सन है क्या है? कौन सा पर्सन है? कौन सा थर्ड पर्सन ही। वर्ब नहीं पूछा है। थर्ड पर्सन कौन से नंबर में है? सिंगुलर बेटा। He writes a letter. He is third person. Sentence कौन से नंबर में है? सिंगुलर में है। एंड कौन सा टेंस है? राइट प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट है। ये समझ में आया या नहीं आया? आया कि नहीं आया? See, he writes a letter. ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है। अब हम देखेंगे ये फाइनाइट वर्ब कैसे है, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि ये कौन से पर्सन में है। ये कौन सा पर्सन है? he क्या है? थर्ड पर्सन। क्यों? I फर्स्ट पर्सन, you सेकंड पर्सन, he जिसके बारे में बात कर रहे हैं दैट इज द थर्ड पर्सन। तो he is the third person. Then कौन से नंबर में है ये सेंटेंस? he इकलौता है ना, एक ही है ना, इट इज सिंगुलर। देन कौन से टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट। यस, प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि हमारे पास जो वर्ब है दैट इज राइट्स। सॉरी, दैट इज राइट्स, ठीक है। अंडरस्टैंड? अब देखो इसका फॉर्म कैसे चेंज होगा। फाइनाइट वर्ब देख रहे हैं ना हम ये देखेंगे फॉर्म कैसे चेंज करता है। और हमने क्या बोला? फॉर्म तीन बेसिस पे चेंज हो सकता है, पर्सन में, नंबर पे या फिर टेंस पे। अब कोई मुझे चेंज करके बताएगा इसको? ही तो बेटा फिर सेम है, शी भी सेम है। थर्ड पर्सन तो थर्ड पर्सन। यू राइट तो फिर प्रेजेंट टेंस ही है। यू रोट अ लेटर। यस, यू रोट letters to me. अब बदली इसकी फॉर्म। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। कंफ्यूज मत करो मुझे। I is first person, बाबा अभी तो बोला। Second person, then plural, and then it is in past tense. Okay? आपको समझ में आया? See, मेरा बोलने का मतलब क्या था? What I wanted you to understand is finite verb जो कि अपना फॉर्म चेंज कर सकते हैं। एंड these sentences have this sentence has changed its form. कैसे चेंज किया है फॉर्म? He was in third person which is converted to second person. Now right was in present tense. It became wrote and then sentence was in singular and it became plural. Okay, understand? ये समझ में आ गया होगा? Finite. Understand? Happy birthday, mom. Let me know. अभी समझा रही हूँ, मम्मी समझा रही हूँ। अभी फाइनाइट की क्वेश्चन पूछो। हाँ, You wrote letters to me. तुमने मेरे लिए लेटर्स लिखे। बहुत सारे पत्र लिख दिए तुमने मेरे लिए। पत्र। Okay, now
लोग रेस्टलेस क्यों हो जाते हो? मतलब सबकी बॉडी लैंग्वेज में देख रही हूँ, किसी की बॉडी लैंग्वेज ऐसे नहीं है कि जैसे आप बैठे हो वैसे ही बैठे रहो, अटेंटिव आप नहीं हो, आप कभी इस तरफ हिल रहे हो, कभी उस तरफ हिल रहे हो, क्या ये ऐसे आप सोल्जर्स बनोगे? बॉडी लैंग्वेज पता है ना क्या होती है? क्या नहीं, इतना भी नहीं ऐसे स्ट्रेट होना है, बस जस्ट अपनी बैकबोन सीधी रखो और ढंग से बैठो। आप ऐसे रेस्टलेस होके, ऐसे स्लाउची होके नहीं बैठ सकते हो, ठीक है? वही शिवी आई होते हुए मैं उनको छोड़ने गई हूँ, ये लोग यहाँ पता नहीं क्या कर रहे हैं। कौन है भाई? वीडियो बन रही है, ओके ठीक है सब दिख जाएगा, कोई नहीं, वीडियो बन रही है। मैं बता रहा हूँ। हाँ। किसी को भी आइडिया था वीडियो बन रही है? ओके 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 सब कैमरे में है, ओके शांत। आपको आइडिया है कैमरा चल रहा है, आप क्या बोल रहे हो? अभी मैंने आपको यहाँ से मैं गई हूँ जस्ट ये बता के कि आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे रखनी है। ये बच्चा बैठो, जैसे बैठना है बैठो, ठीक है? पर एक बार अगर कुछ समझा दिया जाता है ना तो सोचते कि हाँ मैम कुछ बोल रही है तो हम वैसे बैठेंगे। मेरे लिए नहीं, मैंने RAMC नहीं क्लियर करना है। अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैं अपना टाइम देने आई हूँ ना, क्योंकि आप लोगों को हमें क्लियर करवाना है RAMC, है ना बेटा? तो आपको थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा ना, है ना? तो ध्यान रखना और पढ़ाई पे ध्यान, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं आई हूँ, मैं आप लोग के लिए आई हूँ। कोई भी टीचर यहाँ आता है आप लोग के लिए आता है ना? योर पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग इन दिस, आप लोगों के लिए, आपको भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, राइट? चलो आगे बढ़े। फाइनाइट वर्ब आ गया होगा समझ में, इनफाइनाइट वर्ब। यस, बेटा अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप आपस में क्या बात कर रहे हो? क्या? तो आप मुझसे पूछो, आप आपस में क्या ही बात कर रहे हो, मुझे ये बता दो। आप मत बोलो, उसको बैठना होगा वो बैठ जाएगा, ठीक है? जिसको सोल्जर बनना है और बहुत ऑनेस्टली बनना है वो अपने ऊपर ध्यान देगा, वो अपनी पढ़ाई करेगा। जो यहाँ पे सिर्फ अपने पेरेंट्स के पैसे वेस्ट करने आ रखा है या फिर टाइम वेस्ट करने आ रखा है, वो बच्चा ध्यान नहीं देगा। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, see these are the words
because they do not have a noun या फिर pronoun as a subject. Who does the action? है ना? Action कौन करता है? Action कौन करता है? सब verb कैसे action करेगा? Verb is itself an action. Action कौन करता है? A subject. Either a noun or a pronoun. फिर से सबकी body language खराब हो गई. ठीक है. अब हमने पहले वाला लर्न किया फाइनाइट किस किस बेसिस पे चेंज होता था? Numbers and person. Now these sentences do not change on the basis of tenses, person or number. Okay? Written? I'm erasing. ठीक है? बेटा मैंने आपको बोला है मेरे साथ साथ लिखो. अगर साथ साथ नहीं लिख रहे हो, then I do. जो अटेंटिव नहीं होगा ना क्लास में, वो ही नहीं लिखेगा. वो बच्ची अटेंटिव है, मैं उसको फर्स्ट टॉपिक से देख रही हूँ, जो मैं लिख रही हूँ वो लिख दे रही है और बैठ जा रही है सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए. जो मैं समझा रही हूँ समझने के लिए. तो शी इज ओनली अटेंटिव इन द क्लास. वो कल भी अटेंटिव थी, आज भी अटेंटिव है. आप लोग पता नहीं, कोई किसी का ध्यान कहीं है, किसी का ध्यान कहीं है. हो सकता है और बच्ची भी अटेंटिव हो, मुझे नहीं दिख रहे हो, बट वो बच्ची अटेंटिव है, मुझे दिख रही है. ऐसे क्लियर करो. हेलो, पार्क में पैर का ऐसे बैठना. ऐसे यहाँ बैठ रखे हो, पैर आपके उधर जा रहे हैं, आप क्या पार्क में बैठे हो? अभी समझाया यार, तुम लोग को ध्यान नहीं रहता, ये याद नहीं रहता है. कोई गेम खेलते हो उसके रूल्स तो एकदम से याद रख लेते हो, है ना? तो ये चीजें क्यों नहीं याद है? आप यहाँ ऑर्डिनरी स्कूल में हो, ये कोई स्कूल मतलब नॉर्मल स्कूल है. यहाँ क्या करने आए हो? तैयारी करने आए हो ना किस चीज की? आर्यन से पता है ना क्या है? कैडेट साहब से मिलके गए हैं ना, जतिन मिश्रा मिलके गया है ना, बताया ना कुछ चीजें. हाँ वही सैनिक, मिलिट्री या फिर आरएमसी. नॉर्मल स्कूल नहीं है ना, तो आप नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं रह सकते बेटा. ठीक है? आप स्पेशल बच्चे हो क्योंकि आप स्पेशल पढ़ाई कर रहे हो. ठीक है? तो थोड़ा सा तो अपने अंदर वो चीज़ डालो ना. नॉर्मल ऐसे बैठे हो, सब चीज़ें बने हो, कोई मतलब नहीं है, बातें कर रहे हो, क्यों? तो ये तो आप अपने स्कूल में भी कर सकते हो, है ना? यहाँ पे आए हो ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल होके पढ़ो. ठीक है? अब मैं नॉन फाइनाइट वर्ब की आपको टाइप बता रही हूँ. नॉन फाइनाइट वर्ब फर्स्ट इज इंफिनिटिव, नेक्स्ट इज जेरुली बोलते हैं. ठीक है? एंड थर्ड इज
नहीं होगा, जिनको बिल्कुल ध्यान नहीं है कि वो आरएमसी की तैयारी कर रहे हैं, उनका ध्यान उस पे होगा और वो हंस रहे हैं शिवी की आवाज सुन के। और जो अटेंटिव हैं, जिनको पता है हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, उनका ध्यान यहाँ है कि मैम क्या लिख रही है। मुझे सुनाई दिया आप लोग की हंसी, इसलिए बोला। पार्टिसिपल्स आर ऑफ टू टाइप। Then participles. Present and past. Okay. Infinitives. INFINITIVES. आपकी बुक क्यों नहीं खुली है? वाह, क्या पढ़ रहे हो बेटा? क्या पढ़ रहे हो? और सबके पास यही बुक है ना? स्कूल में भी अगर ये चीज करते हो तो मैम बोलती है ना? हेलो, स्लीपी हेड, नींद आ रही है? योर हेड इज पेनिंग। कोई नहीं, आप उधर बैठ जाओ, उसको इधर बैठने दो। बुक, अच्छा उसके पास है, ठीक है बुक। आप उधर जाओ, अपनी बुक यहाँ रखो। आपका हेड पेन कर रहा है, आप खुद से हेड डाउन करके लेटे हुए हो, आपने मैम को इन्फॉर्म करना सही नहीं समझा, क्यों? यस, इन्फिनिटिव, मैंने इन्फिनिटिव के बाद जेनुइन लिखा है, GERUND। उसके बाद पार्टिसिपल्स लिखा है। आपको स्पेलिंग समझ नहीं आ रही है तो यू कैन आस्क मी। इट इज INFINITIVES। दिस इज GERUND। दिस इज PARTICIPLES। आई समझ? कोई बच्चा है जिसको मेरी स्पेलिंग राइटिंग समझ नहीं आ रही है? आपको आप आ रही है ना? ठीक है। बेटा एक बच्चे को हेडेक हो रहा है, आपने देखा, मैंने उसको साइड कर दिया तो आपका हेडेक खुद ब खुद हो गया, क्योंकि आपको पढ़ाई नहीं करनी है, आपका ध्यान नहीं है पढ़ाई में। पैर आपके शेक कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है आप यहाँ पे होंगी अटेंटिव, तो मैं आपको रेस्ट नहीं दे सकती, आप पढ़ो, ठीक है? पानी पीना है? बॉटल है किसी पे? कोई शेयर कहाँ है? निकालो, पियो। यस, लिख लिया? ओके। ड्रिंक वाटर। बेटा आपको बोला मैंने वाटर पीने के लिए, कौन पूछ रहा है? नहीं, पूरी क्लास में बोला था ना मैंने कि नहीं आप नहीं पी सकते। उसको हेड में पेन हो रहा है शायद, इसलिए उसको पानी बोला है मैंने। अब सब ये मत बोलने लग जा रहा कि हेड में पेन है, हेड इज एचिंग, ठीक है? तुम मत बोलना प्लीज। पता है क्या है, आप यहाँ हो ना बेटा, आपको सबसे पहले कंट्रोल सीखना है, क्योंकि जिस स्कूल में आप जाओगे ना, जहाँ के लिए आप ट्रेन हो रहे हो ना, वहाँ पे आपको ये चीज़ें इतनी इजीली नहीं मिलेंगी। वहाँ पे अगर आपको जतिन मिश्रा का सुना होगा ना आपने, उसने बताया कितनी टफ ट्रेनिंग होती है, बताया है ना? तो आप खुद को अगर प्रिपेयर कर रहे हो ना उस चीज़ के लिए, तो सबसे पहले कंट्रोल। क्या? ठीक है, क्लास लग रही है? नहीं, हमको पढ़ना है क्योंकि हमें वहाँ जाना है, ठीक है? अभी बोला ना आप ऑर्डिनरी नहीं हो, आप और बच्चों की तरह नहीं हो, और बच्चे सिर्फ स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, आप RAMC निकालने के लिए पढ़ाई करो, ठीक है? तो खुद को थोड़ा सा वैसे, हाँ जी, अब क्या पूरी बॉटल पी जाओगे? तुम्हारे लिए नहीं है कंट्रोल। Infinitives are the words formed by adding two before the base form of a verb। अच्छा, मैंने base form of a verb बोला है, मतलब V1
फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, कोई कंफ्यूज मत होना। बेस जानते हो किसे किसे बोलते हैं? पहले बेस लगाया जाता है फिर घर बनता है, मतलब फर्स्ट, ठीक है। सी और एक इंफिनिटिव ना नाउन की तरह भी एक्ट कर सकता है, एडजेक्टिव की तरह भी एक्ट कर सकता है, या फिर एडवर्ब की तरह भी एक्ट कर सकता है। तुम्हें दिक्कत क्या है? मैं यहाँ खड़ी हूँ, पढ़ा रही हूँ, आप अपनी बुक के साथ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पढ़ना नहीं है? आप पीछे जाइए, जाइए। उसको मत डिस्टर्ब करो, जाओ पीछे Sit. और मुझे आपकी नोटबुक में सारा काम चाहिए, जो भी आज कराए सारा काम चाहिए। पीछे बैठो, मुझे नहीं पता पीछे किसी के भी साथ बैठो, आप वैसे भी अटेंटिव नहीं हो। आप आ जाओ। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, उसको आने दो। आप किसी के साथ नहीं बैठोगे, आप पीछे बैठो। मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, बच्चा अपने ऐसे मार रहा है वो ऊपर यहाँ बैठ के। ये क्या है भाई? नहीं पढ़ने है ना, पहली क्लास के पहले ही बोल दिया करो मैम हमें पढ़ने का मन नहीं है। ओके, अब इसका एग्जांपल, ठीक है। मैंने बोला एक इंफिनिटिव किस किस चीजों की तरह एक्ट कर सकता है, या तो नाउन की तरह, या एडजेक्टिव की तरह, या फिर एडवर्ब की तरह, ठीक है। इस पे लिख देती हूँ। An infinitive can act like a noun, an adjective, or an adverb. ठीक है, इन तीनों की तरह ये एक्ट कर सकते हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे जिसमें ये एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। The road is the place to drive. देखो, infinitives are the verb formed by adding to. To कहाँ पे है? Ma'am, to drive. मैंने पूछा था to कहाँ पे है? ठीक है, to drive. ठीक है? Before the base form of a verb. To कहाँ पे आया? Base form of the verb is drive. To से पहले आया, ये आपका क्या है? इंफिनिटिव। अब ये किस चीज की तरह एक्ट कर रहा है? मैं बोल रही हूँ एडजेक्टिव की तरह। क्यों कर रहा है एडजेक्टिव की तरह, बताओ कैसे कर रहा है एडजेक्टिव की तरह एक्ट? रोड कैसी जगह है? Driving करने का। यस, ड्राइविंग करने की जगह। द रोड इज द प्लेस टू ड्राइव। ड्राइव करने की जगह है रोड, ठीक है। तो रोड कैसी है? ड्राइव करने की जगह है। रोड के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो ड्राइव करने की जगह है। दैट्स व्हाई ये एक एडजेक्टिव वाला नॉन इंफिनिटिव सेंटेंस है, ठीक है। समझ गए? मैम, ये समझ रहे हैं ड्राइव में एडजेक्टिव कैसे होगा? बैठा कोई समझा सकता है इसको? आपको मैं शुरू से ऊपर से नीचे तक पढ़ा रही थी नॉन इंफिनिटिव वर्ब। ये पता है नॉन इंफिनिटिव वर्ब क्या होते हैं? नॉन इंफिनिटिव आर द वर्ब फॉर्म बाय एडिंग टू से बनते हैं और उसके बाद एक वर्ब आता है, ठीक है। अब नॉन इंफिनिटिव वर्ब या तो आपका नाउन की तरह एक्ट कर सकता है, एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर सकता है, या एडवर्ब की तरह एक्ट कर सकता है। जब वो बोल रहे हैं कि ये चीज ये कर सकता है तो कर सकता है। यहाँ पे जो वर्ब है वो एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है, बस दैट्स इट। ओके, your aim is to qualify. बताओ, to qualify. क्वालिफाई ठीक है। And to also.
एडवर्ब क्यों उल्टी है ये वर्ब बांधो बुक बेटा क्वालिफाई क्या है क्वालिफाई क्या है नाउन है वर्ब है क्या पार्ट ऑफ पीछे क्वालिफाई नाउन so it is acting like a noun okay आपका एम है जीतने का क्या करने का एम है जीतने का एम है यहाँ पे it is acting like a noun ठीक है थर्ड अब एडवर्ब तो वही बचा है ना बेटा अच्छा बेटा वही you go to the college to study yes to study है ठीक है yes और adverb क्या होते हैं जो verb को modify करते हैं adjective को modify करते हैं और खुद से एक और adverb को भी modify कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे किसको modify किया जल्दी adverb में किस वर्ब को इन्होंने मॉडिफाई किया किस एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया या फिर किस एडवर्ब को मॉडिफाई किया कॉलेज नाम हो रहा है स्टडी तो हो गया ना वो किसको मॉडिफाई कर रहा है यू तो प्रोनाउन है यस वो आप सब देख रहे हो वर्ब नहीं देख रहे हो उसमें वर्ब क्या है किसको मॉडिफाई किया अंडरस्टैंड नाउ नॉन इन्फिनिटिव नहीं समझ में आएगा आगे एक्सरसाइज में और समझाऊंगी ठीक है जेरेंट्स भी बोल सकते हो हाँ जेरेंट्स भी जेरेंट्स ठीक है सी जेरेंट्स आर वर्ड्स formed when we suffix अच्छा suffix क्या होता है मतलब लास्ट में किसी चीज को ऐड करना ठीक है ing टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सफिक्स का मतलब बाद में किसी चीज को ऐड करना और सफिक्स का उल्टा प्रीफिक्स ठीक है सफिक्स का क्या बोलते हैं उल्टे को क्या बोलते हैं प्रीफिक्स ठीक है प्रीफिक्स मतलब शुरू में किसी चीज को ऐड करें जैसे यू एन अनकंफर्टेबल ठीक है और सफिक्स अगर मैं बोल रही हूँ तो आई एन जी नहीं टू क्वालिफाई कैसे हो सकता है क्वालिफाई में अगर आप ईडी ऐड करोगे क्वालिफाइड बनाने के लिए तो वो जो ईडी है वो आपका सफिक्स होगा ठीक है या फिर आप अन यूज करोगे अनक्वालिफाइड नहीं वो नाम है उसमें आप कुछ ऐड नहीं करते ओके सी ये बहुत इजी है हाँ जल्दी बताओ तो जेम क्या है
सफिक्स क्यों? क्योंकि वो लास्ट में ऐड हुआ है। यस, ठीक है, ये जरूर हुआ आपका, ठीक है ना। और हाँ बताओ बताओ। वर्ब ओनली, ठीक है। बस इसमें आपको क्या होता है, आईएनजी यूज होता है, ठीक है। एंड जनरली, अच्छा आप जैसे एक्ट बोल रहे हो, इट जनरली फंक्शंस लाइक अ नाउन, उसका फंक्शन नाउन की तरह होगा। मतलब जैसे साइकिलिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। क्या है गुड एक्सरसाइज? साइकिलिंग। मतलब सब्जेक्ट हमारा क्या बन गया सडनली? साइकिलिंग। इट इज एक्टिंग लाइक अ नाउन, लाइक अ सब्जेक्ट, ठीक है। ओके 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 ओके। गौरव करें मम्मी बोला चले जाओ। कौन है गौरव? ये वाला गौरव है, ये वाला कौन गौरव है? हाँ जी, पढ़ा दूं? ओके, आई एंजॉय रीडिंग। Yes, reading is good because ING इसमें ऐड हो रखा है, ING सॉरी, ठीक है। और हम क्या एंजॉय करते हैं? रीडिंग। सब्जेक्ट क्या चीज होती है, जिससे हमें ये क्वेश्चन पता चले कि हम क्या चीज या कौन क्या चीज कर रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? रीडिंग की बात हो रही है। तो जिरन इज एक्टिंग लाइक अ नाउन, नाउन की तरह ही वो एक्ट करेगा, ठीक है। ओके, आपको सब कुछ अभी लगना है, आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हो कैडेट बनने के लिए, ठीक है। सीरियसली आपको बुरी लगेगी बात, आप तैयार नहीं हो, आपको तैयार होना पड़ेगा। यहाँ पे रह के आप तैयार हो गए। क्या बताया था मैंने अभी? क्या वर्ड बोला मैंने अभी? क्या वर्ड बोला? क्या किस चीज में आपको ध्यान देना पड़ेगा? और सबसे जरूरी मैंने बोला ही नहीं, पढ़ाई तो करनी है, कंट्रोल सबसे पहले कंट्रोल, ठीक है। जब आप खुद को कंट्रोल करोगे तो आप अपने सेंसेस को कंट्रोल करोगे, आपको दिमाग में आएगा कि हाँ व्हाट एम आई हियर फॉर, ठीक है, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, और क्योंकि आपके लिए मैं आपको समझा रही हूँ। अभी मैं समझाऊंगी जो आपको बाद में सही लगेगी, अच्छा मैम ने उस टाइम ये बोला था तो ये हमारे लिए अच्छा था, राइट। तो प्लीज थोड़ा सा कैडेट की तरह पढ़ाई करो, ठीक है ना। मैनिफेस्ट कर लो, आप कैडेट बन गए हो, उस तरीके से पढ़ाई करो। मैनिफेस्ट जानते हो ना क्या होता है? क्या मैनिफेस्ट मतलब आप सोचते रहो कि आप बन चुके हो, आप बन चुके हो, बन चुके हो। यूनिवर्स में आप पॉजिटिव सिग्नल्स दो कि आप कैडेट बन चुके हो, और उसकी तरफ ऑब्वियसली तैयारी भी करो, पॉजिटिव तैयारी भी करो। तो आप क्यों नहीं बनोगे? बनोगे ना। तो अभी से मैनिफेस्ट करो आप कैडेट बन चुके हो, उसी तरीके से एक्ट करो, ठीक है। ओके, तो ये स्लाउची बेटा आप लास्ट, आप ऐसे बैठे हो, आप क्या जागरण सुनने आए? जागरण सुनने आए हैं? देन कौन आ रहा है बार बार? अक्षर, ओके। क्या बोलोगे? क्या बोलो? माना नहीं आता है, चुप कर, गुस्सा दिखा सकती हूँ। समझ में आया ना? सी मैं बहुत इजी है, मैं आके आपको पढ़ा सकती हूँ। चीजें आ रही है समझ नहीं आ रही है समझ, मुझे मतलब नहीं है, पढ़ोगे या पढ़ोगे, मुझे पहले पढ़ रहे हैं, हम चले जाएंगे। पर अगर मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ ना, तो आपकी भलाई के लिए, ठीक है, ठीक है। आपको मैं थोड़ी देर के लिए विलन लगूंगी, विलन लगेगी, मैं आपकी चीजें क्यों बोल रही है, पर आपकी भलाई के लिए बोल रही हूँ, ठीक है।
दो टाइप के होते हैं ना, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स आर वर्ड्स formed when we suffix ing to the first form of a verb। फर्स्ट फॉर्म को कौन सा फॉर्म बोला था मैंने? बेस फॉर्म। करेक्ट। यस क्या बेटा? when the we नहीं, अच्छा मैं समझ गई। when we suffix मतलब हम जब करेंगे suffix ing को, आप जो बोल रहे हो आप नाउन बोल रहे हो, आप suffix को नाउन बना रहे हो। when the suffix जब suffix ing इसमें ऐड होगा तो दोनों तरीके से सही है, दोनों तरीके से, ठीक है, आप लिख सकते हो। फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स फंक्शन ऑलवेज एज एडजेक्टिव्स, ठीक है, दे फंक्शन एज एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का काम क्या होता है? क्या काम होता है? टू मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। एग्जांपल, आई नीड a writing pad। क्या लिखा है वो? writing pad। इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? मैम राइटिंग मैम क्योंकि उससे लास्ट में आई लगे और हमें कैसा पैड चाहिए? Writing pad। तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव ये तो बताता है कैसा। इट इज अ ब्लू कार। कैसी कार है? ब्लू कार। कैसा पैड चाहिए? Writing। समझ गए अभी? इतना जितना सिखाया अच्छा से समझ में आया है ना? तो कब? मैंने डिस्क्राइब भी कर रहा है। किसको डिस्क्राइब कर बताओ? पैड को किसने पूछा ये क्वेश्चन? किसको डिस्क्राइब कर रहेगा? कौन ऐसा पैड है? राइटिंग पैड है तो किसको डिस्क्राइब? पैड को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। गेट ऑफ द मूवी ट्रेन। किसको मॉडिफाई किया? ट्रेन को। कैसी ट्रेन? सिंपल। आप नहीं बोल देने लगे। शांत कर लो, इसको कर लो पहले, मैं जाने नहीं दूंगी। डन? ये मिटा दो, हाँ, नीचे ऊपर पड़ जाएगा। एक ही दो पार्टिसिपल्स थे ना, एक प्रेजेंट एक पास्ट। यस, मैं लिख दिया और पूछ रहे ये कौन सा पार्टिसिपल्स है मैम? आप बताओगे कौन सा पार्टिसिपल लिखा है मैम? तुम कुछ भी बोलने के लिए बोलना है। मैम शाम को पढ़े रामायण, सुबह पूछे सीधा इसको। हाँ वही वर्ड्स दैट आर। बेटा अब हो गई, वो बात खत्म हो गई ना, उस पर हंसना नहीं, उसी टाइम पे हंसना होता है, बाद में नहीं, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज बार बार बोलूं क्या? बार बार बोलूंगी। बॉडी लैंग्वेज किसने बोला?
रेडी नहीं हूँ कैरेट बनने के लिए, फिर बोलूंगी। पता है ना वहाँ तुम थकने ही जा रहे हो। जतिन मिश्रा अभी इतना पतला हो गया है, तो मैंने वीडियो में देखा, इतना हटा कटा लड़का था ना, पता है इतना मोटू सा था वो, ट्रेनिंग करके वो फिट हुआ है, पता नहीं वो फिट हुआ है। तो कैसी ट्रेनिंग होती होगी बताओ? बहुत फिट ना होती होगी ना? कैसे बैठना है? अभी से तैयार हो जाओ, खुद को तैयार करो। और बार बार ये चीजें ना जो आप बोलते हो ना, इसे क्रिप करना बोलते हैं, ठीक है? ये चीजें बोलना बंद करो। कुछ चीजें ना अपने मन में भी रखो, ठीक है? मैम ये हो रहा है, मैम वो हो रहा है। आप यहाँ पे शिकायतें करने आए हो, पढ़ने आए हो ना? पढ़ने से रिलेटेड जो भी हो रहा है वो आप बताओ, बाकी चीजें, ठीक है? Words that are the third form of verb. Third form of verb. Yes, third. That is V3. ठीक है? And function like adjectives, function like and function like adjectives. और एडजेक्टिव का नाम क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करना या स्पेसिफाई करना, बताना कैसे है नाउन और प्रोनाउन, ठीक है? I like to wear iron clothes. बताओ। I like to wear इनर्ट क्यों बोला? आई के बाद एन है क्या? ढूंढा आर है ना, तो आयरन बोलना, ठीक है बेटा? आई के बाद एन भी है ना, ठीक है? आयरन, ये आपका क्या हुआ? यस, वेरी गुड। और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? क्लोथ को। कैसे क्लोथ? आयरन क्लोथ। डन, हमारे कॉन्सेप्ट भी डन। डोंट शो द ब्रोकन वेज। Don't touch, बेटा मैंने वो क्या बोल दिया था मैंने? ब्रोकन वेज। गिलास नहीं, वेज। और वो गिलास नहीं होता है, इट्स ग्लास, GLA, ग्लास। ओके, चलो मैम को मैं क्वेश्चंस दे दूंगी जो आपको देने हैं। Thank you, ma'am, for teaching us. मैंने कर क्या? Thank you, ma'am, for teaching us. ठीक है, आप मैनर्स बहुत अच्छे हैं आप लोगों के, पर ये जो आप बोलते हो ना थैंक यू मैम फॉर, ये धीरे धीरे मेरी बात है, पता नहीं आनंद Yes, ma'am. मजा आ रहा है क्लास में?